रहमत اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، حکمراں یا متعصب فرما رواں۔ چلیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں صدی کے میسور کے حکمراں حضرت ٹیپو سلطان کی شخصیت کو متنازع بنانے میں متعصب مورخین کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان کی دلیری اور ان کے اپنے وطن کے لیے قربانی لاسانی اور لافانی اہمیت کی حامل ہے۔ ان خصوصیات کے اعتراف کے باوجود کئی مورخین انہیں ظالم و جابر قرار دیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ چند اور تنگ نظر مورخین ٹیپو سلطان کو کٹر مسلم، بنیاد پرست، فرما روا اور متعصب حکمراں گردانتے ہیں، حالانکہ اس سے متعلق تاریخی دستاویزات ان کی پراخ دلی، وسیع القلبی اور رواداری کی داستانوں سے بھرپور ہیں۔ ہندوستان میں تاریخ نگاری میں کوتاہ بینی کی روایت کی ابتدا انگریزوں کے دور سے ہوئی، جب انہوں نے ملک میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کو اپنا سیوا بنایا۔ اس کی خاطر انہوں نے مسلم دور حکومت پر مسلم نوازی اور ہندوؤں کے تئیں متعصبانہ پالیسیوں کی تہمت لگائی تاکہ ہندوؤں میں مسلمانوں کے تئیں نفرت پیدا کی جا سکے اور مسلم فرما رواؤں کی کردار کشی ہو۔ مسلم بادشاہوں اور ہندو راجاؤں میں سیاسی کشمکش اور جنگ کے میدان میں پنجہ آزمائی اس عہد کا فطری امر تھا، مگر انگریزوں کی سرپرستی میں مورخین نے ایسی تمام کشمکشوں کے پیچھے مسلمانوں کی متعصبانہ پالیسی کو مردہ الزام ٹھہرایا۔ میسور کے حکمراں حیدر علی اور ٹیپو سلطان اس پالیسی کا خصوصی نشانہ بنے، کیونکہ انہوں نے انگریزوں کے بڑھتے اقدار کو چیلنج کیا، اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ وہ برطانوی افواج کو ڈھکیلتے ہوئے مدراس کے فورٹ سینٹ جارج تک لے گئے۔ خیریت ہوئی کہ انہوں نے معاہدہ کیا، ورنہ انگریزوں کا قلعہ کما ہو جاتا۔ ان دونوں حکمرانوں کا دور حکومت محض 38 برس کا تھا، جو 1761 سے 1799 تک قائم رہا۔ انگریزوں کو حیرت تھی کہ ایک ہندو اکثریتی علاقے پر مسلم حکمراں کیسے حکومت کر رہے ہیں، گرچہ وہ ہندو رعایا کو ان کے خلاف بغاوت پر ابھار نہ سکے، مگر ان کی چھوڑی گئی تحریروں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفاق، عداوت، پھوٹ اور بدگمانی کے بیج بونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انگریزی تاریخ کے اسی زہریلے ورثے سے حوصلہ پا کر ہندوتوا سے متاثر مورخین نے 1980 کے دہے سے درسی نصاب کی کتابوں میں بھی فرقہ وارانہ زہر گھولنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اب ان کے بڑھتے سائے ہندوستان کی عہد وسطیٰ کی مسلم حکومتوں کی جانبدارانہ تصویر کشی میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کی چند کوششیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو مشق کرنے کے لیے بھی کی گئی ہیں۔ کچھ حلقے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کی فہرست میں ٹیپو کی شمولیت کے خلاف ہیں، حالانکہ ٹیپو کو اس فہرست میں سر فہرست ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیپو نے عرض وطن سے نہ صرف برطانوی سامراج کو بے دخل کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی، اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے انگریزوں سے معاہدہ کی خاطر اپنے 2 فرزندوں کو ان کے پاس رہنے دیا۔ تاوقتی کا وہ تقریباً 2.5 کروڑ کا تاوان دے کر ان کو چھڑانے کے لائق نہ ہو گئے، اور کمال دیکھیے کہ ان کی رعایا نے اپنے حکمراں کی خاطر ٹیکسوں کے ذریعے اتنی رقم اکٹھا کیے جانے پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا۔ رعایا کی اپنے حکمراں سے یہ وفاداری اس کی روادارانہ سبیہ ور کردار کی منہ بولتی تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ٹیپو سلطان کو اپنے ذاتی عقائد کی بنیاد پر اپنے مذہب سے محبت تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کا نام سلطنت خداداد رکھا، مگر یہ بھی اتنا ہی بڑا سچ ہے کہ انہوں نے اپنی رعایا کے درمیان بقائے باہم کی بنیاد پر حکومت کی۔ وہ ہندو اور مسلم کی تفریق سے اوپر اٹھ کر رعایا کی فلاح و بہبودی کے لیے فکر مند تھے۔ ان کی سلطنت خداداد اور انتظامیہ میں ہندوؤں کو نہ صرف اعلیٰ بلکہ حساس اور کلیدی عہدے بھی دیے گئے تھے۔ ان کا وزیر اعظم یا دیوان پورنیہ تھا، وزیر خزانہ کرشنا راؤ تھا،
श्रीनिवास राव मद्रास में उनका सफीर था। अप्पाजी राव को पूना में और मूलचंद को दिल्ली में सफीर मुकर्रर किया गया था। उनका जाती खिदमतगार सुब्बा राव था, जबकि नायक राव और नायक संगना उनके मोतमद खास थे। नरनिया उनका मुहासिब और नागुप्सा कोरिग में रियासत मैसूर का कमांडेंट था। हरि सिंह उनकी फौज की एक डिवीजन का कमांडेंट था। शिवाजी उनकी सहसवार फौज का कमांडेंट था, जिसमें 3000 घोड़े थे। ये तमाम हकाइक उस पर दलालत करते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कभी हिंदुओं के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया। एक हुक्मरान जो हिंदुओं से नफरत करता हो, क्यों कर अपनी फौज में कलीदी ओहदों पर उन्हें रखने का खतरा मोल ले सकता है। मंदिरों को जागीर और तोहफाजात। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार मंदिरों को जागीरें, तोहफाजात और ग्रांट दिए। उस मुख्तसर मजमून में तफसील की गुंजाइश नहीं। ये कहना काफी होगा कि टीपू सुल्तान ने ऐसा खुद को सेकुलर जाहिर करने या जताने के लिए नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तक सेकुलरिज्म जैसे नजरियात आम तौर पर मारूफ न थे और हुक्मरानों को उसके मुतलक जरूरत न थी कि वह किसी दिखावटी हरकतों के जरिए अवाम का दिल मोह लें। मंदिरों के साथ ये सलूक महज उस जमाने की रिवायात, भाईचारगी और मस्जिद को मोहब्बत को जारी रखने की गर्ज से किया गया। मंदिरों के साथ फयाजाना बर्ताव और जंगों को हिंदू और मुस्लिम खानों में तकसीम करने की गलती करके मौर्रिखीन हुक्मरानों की रवादारी या आदम रवादारी साबित करना चाहते हैं। लिहाजा बाज़ मौर्रिखीन अंग्रेज़ों की लिखी गई चंद तहरीरों की बिना पर टीपू सुल्तान को भी उसी मीज़ान में तौलने की कोशिश करते हैं। टीपू सुल्तान ने जहां कोरिग के राजाओं और केरला के नायरों की सरकोबी की, वहीं नवाब ऑफ आरकाट अनवारुद्दीन के साथ भी जंग की जो अंग्रेजों का पिट्ठू था। उड़ीसा के साबिक गवर्नर और मशहूर मौर्रिख डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे अपनी किताब औरंगजेब एंड टीपू सुल्तान इवेल्यूशन ऑफ देयर रिलीजियस पॉलिसी में रकम तराज हैं। अगर टीपू सुल्तान ने कोरग के हिंदुओं, केरला के नायरों और मैंगलोर के ईसाइयों की सरकोबी की, तो उसकी वजह यह थी कि वह टीपू की हाकिमियत को चैलेंज कर रहे थे और बरतानवी हुक्मरानों की तायीद कर रहे थे। उसने यही बर्ताव मालाबार के मापला मुसलमानों और सावानूर के नवाब और निज़ाम के साथ भी किया, क्योंकि उसे उन तमाम से बरतानवी हुक्मरां की हिमायत की शिकायत थी। ये किताब इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज नई दिल्ली ने साइन की है। उससे ये वाज़ेह है कि टीपू सुल्तान ने हर उस हुक्मरां या उन अनासिर के साथ सख्ती का बर्ताव किया जिनमें वह बरतानवी हुक्मरानों की तायीद देखते थे और जो उनके खिलाफ बरतानवी फौजों का साथ दे रहे थे या खुफिया इमदाद कर रहे थे। लिहाजा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने वही कुछ किया जो उन हालात में सियासी हिकमत अमली का तकाजा था, न कि मजहबी और एतकादी जज्बात का। गालिबन उसी वजह से महात्मा गांधी ने टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए लिखा कि टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम इतिहाद की इलामत था। तारीख के नाम पर सरंगेज झूठ। मुअर्रिख किस तरह सियासी और फिरका वाराना मकासद की खातिर बात का बतंगड़ बनाते हैं या तारीख के नाम पर झूठ गढ़ते हैं, उसकी एक और मिसाल डॉक्टर पांडे की किताब से मुलाहिजा फरमाएं। डॉक्टर पांडे ने एक तारीख की निसाबी किताब में, जो एंग्लो बंगाली कॉलेज इलाहाबाद में शामिल निसाब थी, ये वाकया दर्ज पाया कि 3000 ब्राह्मणों ने टीपू सुल्तान के जबरी तब्दीली मजहब के जरिए इस्लाम में दाखिल कराने की कार्रवाई से तंग आकर खुदकशी कर ली। उस किताब के मुसन्निफ नामूर दानशूर हरि प्रसाद शास्त्री थे। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शोभा संस्कृत के सदर थे। डॉक्टर पांडे ने फौरी डॉक्टर शास्त्री को खत लिखकर उस वाकया के लिए हवाला तलब किया।
कई बार याद दहानी के बाद शास्त्री ने उन्हें लिखा कि ये वाकया मैसूर गजेटर में दर्ज है। डॉक्टर पांडे ने उस वक्त मैसूर यूनिवर्सिटी के सरबजेंद्र नाथ सेल को खत लिखकर उस हवाला तारीख की तस्दीक चाहिए। सरबजेंद्र ने मैसूर गजेटर के उस वक्त के मुदीर प्रोफेसर श्री केंटिया से उस हवाले की तलाश की दरख्वास्त की। श्री केंटिया ने जवाबन तहरीर किया कि ऐसा कोई वाकया टीपू के दौर हुक्मरानी में पेश नहीं आया। श्री केंटिया ने यह भी लिखा कि टीपू सुल्तान का वजीर आजम पूर्णिया और सिपह सालार दोनों ब्राह्मण थे। उन्होंने उस खत के साथ 156 हिंदू मंदिरों की एक फहरिस्त भेजी जो टीपू के खजाने से मुस्तकिल वज़ाइफ पाया करते थे। उसके अलावा ये भी लिखा कि तजिंगड़ के मशहूर मंदिर में आज भी टीपू सुल्तान का दिया गया तोहफा लंगा महफूज है, जिसकी पूजा की जाती है। टीपू सुल्तान के महल से सबसे करीब इबादतगाह श्री रंगानाथ स्वामी का मंदिर था, जिसकी घंटियों की सदा हमेशा टीपू के कानों को महसूस करती थी। इम्पैक्ट इंटरनेशनल, लंदन, जुलाई 1998। डॉक्टर शास्त्री ने यह वाकया कर्नल माइल्स की हिस्ट्री ऑफ मैसूर से नकल किया था। माइल्स ने दावा किया था कि उसने ये वाकया मलिका विक्टोरिया की जाती लाइब्रेरी में महफूज एक फारसी मकतूता से नकल किया है। डॉक्टर पांडे ने उस मकतूता की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि वहां ऐसा कोई मकतूता नहीं है। उस तहकीक व जस्तजू के बाद डॉक्टर शास्त्री की एक किताब मश्क शुदा तारीख के साथ हिंदुस्तानी रियासतों आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शामिल निसाब थीं। उन्होंने उन तमाम तहकीक व मुरासलात की कापियां कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आशुतोष चौधरी को रवाना की। डॉक्टर चौधरी ने फौरी तौर पर 1972 में उस किताब को खारिज अज निसाब करने का हुक्म दिया, मगर डॉक्टर पांडे ने पाया कि कई बरस बाद यही झूठा वाकया उत्तर प्रदेश की जूनियर कॉलेज की तारीख की कुद में पढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर पांडे के मुताबिक उस तवील अरसे में यह झूठ तारीखी तौर पर एतबार हासिल कर चुका था। मंदिरों के साथ फयाजी का दूसरा पहलू। हजरत टीपू सुल्तान की मंदिरों को दी गई जागीर और अतियात की तफसील लंबी होगी, मगर हम कारीन के रूबरू एक दूसरा पहलू लाना चाहेंगे। हालिया बरसों में कर्नाटक के सरंगेरी के मशहूर मंदिर से बरामद शुदा दस्तावेजात से ये मालूम हुआ है कि उस मंदिर को पूना के पेशवा हुक्मरानों के अफवाज ने टीपू के अहद में हमला करके लूट लिया था और दीगर कीमती एशिया के साथ शारदा देवी का सोने से बना बुत भी अपने साथ ले गए थे। सरंगेरी मठ के बड़े पुजारी ने टीपू सुल्तान को उसकी बाबत लिखा था। उस पर टीपू ने उन्हें खत लिखकर गहरे दुख का इजहार किया और उस बुत की बहाली का इंतजाम करने का वादा किया और सल्तनत खुदादास से इसका नज्म करवाया। टीपू सुल्तान ने मद्रास के करीब कांचीपुरम के बड़े मंदिर की तामीर की तकमील के लिए अपने खजाने से 10,000 हूंस जारी किए और उसकी इफ्तिताही तकरीब में बनफ्स नफीस शिरकत की। उन्होंने मलकोटे के मशहूर चिलवारिया स्वामी मंदिर में पुजारियों के दरमियान झगड़े के तस्फिया का नज्म किया और फरीकीन ने टीपू के फैसले को कबूल भी किया। डंडेगल की फौजी मुहिम में उन्होंने राजा के महल के जुनूब में फायरिंग करने से मना किया, क्योंकि वहां राजा का जाती मंदिर वाकई था। कर्नाटक के ही टमकूर जिला के सीबी नामी मुकाम पर वाकई कदीम मंदिर की छत में टीपू सुल्तान की तस्वीर नक्श हैं। ये नक्काशी टीपू की शहादत के तकरीबन 50 बरस बाद अमल में आई थी, जो टीपू की हिंदू आवाम में मकबूलियत का पता देती है। कर्नाटक के देही इलाकों के देही गीतों में आज भी टीपू के कसीदे गाए जाते हैं, जो कन्नड़ा जुबान में लिखे गए हैं।
4 मई 1799 को अंग्रेज फौजों के हाथों टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज फौजों ने श्रीरंगपट्टनम को कई दिनों तक लूटा, लेकिन जहां एक तरफ अंग्रेज फौजें उस लूट में मसरूफ थीं, वहीं दूसरी जानिब टीपू के वफादार हिंदू अवाम उनकी लाश के चारों जानिब सजदा करते देखे गए। इस रक्त अंगेज मंजर का तज़किरा अंग्रेज मुअर्रिख बैटसन मतबूआ 1880 में पाया जाता है, और कर्नाटक के वजीर मोहम्मद मोइनुद्दीन मरहूम ने अपनी किताब सनसेट एट श्रीरंगपट्टनम में उस हवाले को दर्ज किया है। यकीनन किसी मुतअस्सिब और गैर रवादार हुक्मरान के तई हिंदू अवाम का ये रवैया नहीं हो सकता। इंसानियत को टीपू सुल्तान का अतिया। हजरत टीपू सुल्तान पर मैसूर के प्रोफेसर डॉक्टर बी शेख अली ने डॉक्टरेट का मुकाला लिखा है। टीपू सुल्तान ये सेकुलर रूलर में वह रकम तराज है। टीपू सुल्तान के 17 साल दौरे हुकूमत का सबसे दरख्सा पहलू उनकी तरक्याती पॉलिसियां थी। टीपू ने तिजारत, सनात और दस्तकारी और फनून की तरक्की में बेपनाह दिलचस्पी ली। उन्होंने निज़ाम हुकूमत को चाक व चौबंद बनाया और नेवी, बहरिया, रॉकेट सिस्टम, तिजारत और सनात के सरकारी कंट्रोल का नज़्म किया। उन्होंने कागज और शक्कर, कटलरी, सीसा, बंदूक और असलहा की फैक्ट्रियां कायम करवाई। शहर गुंजाम को सनाती शहर के तौर पर तरक्की दी गई। यहाँ कपड़ा और कागज बड़ी मिकदार में तैयार होता था। उसकी सल्तनत में होन्नावर, मैंगलोर और भुटकल कर्नाटक के बड़े बंदरगाह थे। यहाँ से संदल का तेल, रेशम, काली मिर्च, कालीन और हाथी दांत से बनी मसनूआत बरामद की जाती थी। उन्होंने मिस्कत, जिद्दा, बसरा और पेगू जैसे शहरों में अपने तिजारती सफरा भेजे और अपने ज़ेर इक़्तिदार खित्तों में डाक और कोऑपरेटिव बैंकों, इमदाद बाहिमी के बैंकों का नज़्म किया। टीपू ने मुख्तलिफ मकामात से दस्तकारों को बुलवाया और काम पर लगवाया, ज़रूरतमंद किसानों को कर्जे दिलवाए और बंजर ज़मीनों को आबाद करने और ज़राअत करने के प्रोग्राम बनाए। उन्होंने ज़मींदारी निज़ाम पर इम्तना आयद किया। किसानों को अपनी पैदावार में से 1/4 पैदावार टैक्स के तौर पर देने का हुक्म दिया। अगर फसलें खराब हो जाती तो टैक्स की माफ़ी होती। उन्होंने रेशम साजी के हौसला अफजाई की। उनकी रियासत में रेशम के 21 फार्म कायम किए गए। उन्होंने सजा याफ्ता कैदियों को सजर कारी करके सजा माफ करवाने का कानून नाफिज किया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सल्तनत खुदादाद में बदउनवान सरकारी हकाम और सरपसंद अनासिर को सख्त सजाएं दी जाती थी। टीपू सुल्तान ने समाजी बुराइयों मसलन शराब नोशी, गुलामी और लावारिस बच्चों की खरीद और फरोख्त से सख्ती के साथ निपटने की ताकीद की। उनकी इस्लाहात का दायरा कैलेंडर का तारुफ, नाप और तौल के मीज़ान की तनफीज, बैंक और मालिया की फराहमी, अफवाज और बहरिया की तंजीम, मालिया और अदलिया के क़याम पर मुहित था। उन्होंने रहती नाम सिक्के जारी किए जिन पर हिंदू देवी देवताओं मसलन शिवा, पार्वती, समनेगरी, शारदा और उडुपी कृष्णा की तस्वीर थी और कन्नड़ा और फारसी में अल्फाज कुंदा थे। चंद फिरकों और तबकात में इंसानों की कुर्बानी देना, एक खातून के कई मर्दों से अज़दवाजी ताल्लुकात वगैरह जैसी रस्में राइज थी। कुछ और कौमें ख़वातीन को इंतहाई मुख्तसर लिबासों में मलबूस रखती थीं। अपने फरमानों के जरिए टीपू सुल्तान ने उन गैर इंसानी रसूम व रिवाज पर पाबंदी आयद कर दी। उन सब इस्लाहात के जरिए उन्होंने अवाम के बड़े तबके को अपना गुरवेदा बना लिया। उनमें से कई इस्लाहात यकीनन कदीम ज़माने से चली आ रही मजहबी रिवायात का हिस्सा समझी जा सकती हैं और उनके सरकारी इम्तना को मजहबी रसूम में मदाखलत का इल्ज़ाम भी आ सकता है।
لہٰذا یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ آیا یہ ان فرقوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا تھا۔ انتہائی معروضی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے اس زمانے کے بہترین تاجداروں کے درمیان ٹیپو سلطان کا تاج واقعی زیادہ تابناک اور درخشاں نظر آتا ہے۔ بنگال کے نامور مورخ جادوناث سرکار ٹیپو سلطان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: ٹیپو سلطان واقعی بہت عظیم حکمراں تھے، جنہوں نے اپنی حیرت انگیز اصلاحات کے ذریعے سماجی، اقتصادی اور سیاسی میدان میں عظیم اصلاحات نافذ۔ ٹیپو سلطان کو کئی غیر جانبدار برطانوی تاریخ دانوں نے بھی ان کی جدت پسندی اور غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں اور ترقیاتی کارناموں کے لیے سنہرے الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان میں سے ایڈورڈ مور کا اقتباس ہماری دلچسپی کا باعث ہونا چاہیے، کیونکہ مور ٹیپو سلطان کی افواج سے میسور کی ریاست میں صف آرائی کے لیے بمبئی سے برطانوی افواج کی ایک بڑی ٹکڑی کی کمان سنبھالے ہوئے میسور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ واقعہ تیسری میسور کی جنگ، تھرڈ میسور وار کا ہے۔ ایڈورڈ مور اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے: جب ایک سیاح ایسی اجنبی سرزمین میں سفر کر رہا ہو جہاں وہ وہاں کی اراضی کو سینچا ہوا اور لہلہاتی فصلوں سے بھرپور پاتا ہے، لوگوں کو محنتی اور مختلف پیشوں میں مصروف دیکھتا ہے، نئے شہر ابھرتے ہوئے اور تجارت کو زوروں پر چلتے محسوس کرتا ہے، اور انسانی چہروں کو فرق نودہ پاتا ہے، تو اس احساس سے عاری نہیں رہ سکتا کہ یہ عوام کسی ایسی حکومت و نظم و نسق کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں جو ان کے دل و دماغ کو مسحور کیے ہوئے ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو ہمیں ٹیپو کی ریاست میں نظر آیا، اور یہ ہمارا اس کی حکمرانی سے متعلق احساس ہے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا یہ ٹاپک اور ویڈیو تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو، نئی ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔